Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry. Up to our previous lecture, we have learned about some reactive intermediates like carbocation and the carbon-free radical. In this lecture, we are going to discuss carbon ion or we can say negative charge carbon. अभी दोस्तों इसमें characteristics आपको याद रखनी है. In comparison to carbocation, in the carbocation total number of electron 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the positive charge. Similar case in the carbon ion 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and the negative charge. So दोनों में similarity ये है, 3 covalent bonds, 3 sigma bonds are there, but if positive charge and 6 electron with positive charge carbocation, 8 electron and the negative charge, that is carbon ion. 8 electron and the negative charge, that is carbon ion. So let's begin with the carbon ion. So how can we identify this is the carbon ion or not? So simple phenomena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, total 6 bond from the 6 electron from the covalent bond, 2 free electron and the negative charge, that is carbon ion. कैसे मिलेगा? From the heterolactic fission we can make carbon ion from the heterolactic fission. In the heterolactic fission, if carbon have the more tendency to accept the electron in comparison to opposite reactive group, then carbon becomes carbon ion. So when a covalent bond in which carbon is attached to the lesser electronegative atom in comparison to carbon break up by the electrolysis or heterolactic fission. Electrolysis or heterolactic fission both are equal. The atom leaves without taking away the bonding pair of electron n. Thus, the carbon atom acquires a negative charge due to an extra electron. तब दोस्तों कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन सी here 2 electron from the each atom, one from the carbon, second one from the y is the opposite atom. Here the electronegativity or electron attracting tendency of the carbon is higher than the y, so this carbon is able to attract the electron and convert into anionic form. So सामने वाला क्या बनेगा? cation. Okay, this carbon ion, this anion is known as the carbon ion. Such organic ions which contains a negatively charged carbon atom are called carbon ions. These are named after the parent alkyl group and adding the word carbon ion. Similar to carbocation, methyl cation, ethyl cation, propyl cation, similar methylanion, ethylanion, propylanion, isopropylanion, tertiary, secondary, butyl anion, etc. So here you can see this is the methylanion. Okay, total electron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and the negative charge. So this is the methylanion. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 electron from the bond, 2 electron, 2 free electrons, 1 lone pair and the negative charge. Okay, this is the ethyl anion. Then these are also termed as a primary, secondary and tertiary depending on the nature of the carbon atom bearing the negative charge. Similarly, if you remember, if carbon free radical with the single carbon chain, then 1 degree carbon free radical. If carbocation with the single chain, 1 degree carbocation. Similar way, if carbon ion with the single chain, then 1 degree carbon ion. Organic compounds which possesses a liable or acidic hydrogen to have the tendency to produce carbon ions as in the case of the reactive methylene compounds which lose a proton in presence of sodium ethoxide. Okay, this is okay, but I think अब दोस्तों ये sentence में मैं भी confused हो जाओगे. Liable or acidic hydrogen. Acidic hydrogen means what? With the hydrogen which is able to remove as a proton form. This hydrogen, if this hydrogen is able to remove as a proton form, this R become minus and hydrogen become plus proton. So this is the acidic hydrogen. Okay. So जहाँ पे भी acidic hydrogen हो वहाँ पे दोस्तों कार्बन आयन बनने की possibility ज़्यादा है. Here you can see this is the ester, malonic ester. Total number of carbon 5, 1, 2, 3, 4, 5. Malonic ester में दोस्तों because of this both ester group with this CH2
carbon, hydrogen, and the hydrogen. If here fission is there, which types of fission? Heterolactic fission. In heterolactic fission or heterolysis, carbon is able to accept the electron from the hydrogen because of the support of these two ester groups. So we will get finally anionic carbon in presence of sodium methoxide. जनरल केस में सोडियम methoxide की presence में होगा. Here the H plus is take place with the C2H5O minus and we will get C2H5OH or alcohol as a byproduct. But our main product or main mechanism is to format of the carbon ion. This H or hydrogen is known as the acidic hydrogen also because of possible to remove in the form of the H plus. If H plus में remove हो सकता है, then acidic hydrogen or acidic proton is there. Okay. Then characteristics दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, 8 इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव चार्ज. हाइब्रिडाइजेशन जनरल केस में यहाँ पे क्या होगा, sp3 होना चाहिए. लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे दोस्तों ये एक एक हाइड्रोजन किसका है, हाइड्रोजन का, 1 फ्रॉम द नाइट्रोजन. देन 1 लोन पेयर. सिमिलर इफ कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. If methyl anion is there, one more pair is there. The difference is there is no charge with the nitrogen in the ammonia, but negative charge with the carbon in the methyl carbon ion. Similar step, pyramidal step मिलेगा दोस्तों. 3 bonding pair and 1 lone pair is there. जो अमोनिया में थी वही सिमिलर यहाँ पे होगी. So you can see the carbon carrying the negative charge contain 8 electron in the valence shell. I mean to say complete octet. Octet in general case कैसी होगी, complete होगी. Then they are highly reactive because in them carbon carrying the negative charge is electron rich and can donate its non-bonding pair to the non-bonding pair of electron to some other group of sharing. I mean to suppose if there is H plus, so ये H plus और इस तरह के किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप या आइटम को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. They can make a coordinate covalent bond there. Hence carbon ions behave as a nucleophile and readily attacked by the electrophiles. Clear? Okay, then point C. Point C is the negatively charged carbon. I repeat, the negatively charged carbon is an state of the sp3 hybridization, as we already discussed. और इसको दोस्तों फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं in the shape of the carbon ion. Okay, but फिर भी कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, और यहाँ पे एक lone pair होगी. Okay, so sp3 hybridization. The hybrid orbitals are directed towards the corner of the tetrahedron. 3 of hybrid orbitals are involved in the formation of single covalent bond with other atom, while 4th hybrid orbital contains a lone pair of electron. Suppose this is methyl, but यहाँ पे bond क्या बना, sigma. अगर दोस्तों ये मिथाइल नहीं है, just suppose this is any other, so यहाँ पे in place of hydrogen मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, but here 3 single bond is there and 4th one is with the lone pair. Here you can see 1 lone pair is there. So carbon ions have pyramidal structure similar to ammonia. Ammonia का भी कुछ इसी तरह से था, 1 2 and 3, 1 2 and 3, and this is the lone pair. Most important, carbon ions are diamagnetic. ये दोस्तों अगर periodical की बात करो तो paramagnetic है. Carbocation and the carbon ion both are diamagnetic because there is no unpaired electron. Paired electrons are there, so diamagnetic. Clear? Then a reaction involving carbon ions. तो कार्बन आयन से कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं, टोटली एक्स्ट्रा है. अभी के लिए शायद आप नोट्स भी ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सभी जो रिएक्शन यहाँ पे दे रखे इन विच कार्बन आयन इज इंपॉर्टेंट, दैट ऑल रिएक्शन वी आर गोइंग टू लर्न बट आफ्टर सम टाइम. सो दोस्तों जब भी ये रिएक्शंस आएगी इन दी 12th और इन दी 11th with some additional point, तब दोस्तों मैं याद दिलाऊंगा that in this reaction carbon ion is formatted. So aldol condensation of the aldehyde having alpha H atoms, Cannizzaro reactions, aldehyde without alpha H atoms, Parkinson reactions,
carbon ions and the intermediates, and the Novangel reaction involve the formation of carbon ion as an intermediate. So ये दोस्तों ज़्यादा आपके लिए पॉइंट ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको ज़्यादा टेंशन लेना है, ये जस्ट नोट डाउन कर दो या फिर नोट डाउन ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. Okay, structure of the carbon ion which we have already discussed. Here you can see this is the carbon in the ammonia, this is nitrogen, three different chains. Maybe ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, R is equal to हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, different carbon chain भी हो सकते हैं. Okay, and one lone pair. Here you can see one lone pair. One lone pair is there. Like a pyramidal shape. Shape कौन सा होगा? Pyramidal होगा. Stability. Stability of the carbon ions influenced by the resonance. दोस्तों रेजोनेंस से इंफ्लुएंस है. और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दो चीज आपको याद रखनी है. जितनी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी कम, जितनी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा. एग्जैक्टली अपोजिट है किससे? कार्बोकैटायन से. कार्बोकैटायन से अपोजिट है दोस्तों. वहां पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा थी, स्टेबिलिटी ज्यादा थी. यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, स्टेबिलिटी कम. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा. और रेजोनेंस में सिमिलर है दोस्तों, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. ओके, so stability of carbon ions influenced by the resonance and the inductive effect as well as S character of the orbitals. The group having positive effect decrease the stability, while group having negative inductive effect increase the stability of the carbon ions. Here you can see this is general methyl cation, methyl anion, not cation, methyl anion. This is 1 degree anion, 1 carbon chain. This is 2 degree anion and this is 3 degree anion. जो 3 डिग्री anion है दोस्तों सबसे कम स्टेबल है, बिकॉज सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है. यहाँ पे सबसे कम थी. इससे भी ज्यादा स्टेबल कैटायन हो सकता है. सपोज दिस इज हाइड्रोजन anion, नॉट कैटायन, एंड दिस इज Cl. सो Cl की नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है. जितनी ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा, जितनी कम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी कम. रेजोनेंस में इक्वल है, पॉजिटिव में डिफर आएगा. द ग्रुप हैविंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी, व्हाइल ग्रुप हैविंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयंस. दोस्तों ऑलरेडी मैंने बात कर दी है. सपोज दिस इज सिंपल कार्बन आयन, दिस इज CH3CH2 कार्बन आयन एंड दिस इज CH2Cl कार्बन आयन. ये सबसे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज Cl with the negative inductive effect. ये CH2 माइनस सबसे कम स्टेबल है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. और ये क्या कहाँ पे रहेगा? मीडिएट. दोस्तों रिएक्टिविटी के लिए हमने आगे भी बात की थी. जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबल फेज में रहना पसंद करेगा, इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी. सो अगर इसकी 3 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम, इट मीन्स रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. और 1 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा, इट मींस रिएक्टिविटी कम होगी. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना. ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बन आयंस इज रिवर्स टू द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी. एग्जैक्ट रिवर्स होगा. किससे रिवर्स होगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से. स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम. स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा. देन एलाइल एंड बेंजाइल कार्बन आयंस आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस. हियर यू कैन सी, हमने देखा था ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, देन सिंगल, देन डबल, तब रेजोनेंस हो सकता है. सो एलाइल कैटायन में भी रेजोनेंस पॉसिबल है, एलाइल एनायन में भी पॉसिबल है, एलाइल फ्री रेडिकल में भी पॉसिबल है. सिमिलर विद द बेंजाइल, बेंजाइल में भी है. बट यहाँ पे दोस्तों जो रेजोनेंस होगा वो रेजोनेंस डिफर होगा. किससे डिफर होगा? कैटायनिक रेजोनेंस. वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे कैटायन ऊपर कार्बन को, यहाँ से ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं. सो अंदर जो चार्ज कैरी करेगा दैट इज नेगेटिव. और आपको शायद मालूम हो इन दी कैटायन अंदर जो चार्ज कैरी कर रहा था दैट वाज पॉजिटिव. बट यस, रेजोनेंस इज हियर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज हाई. सो ये आपको दोस्तों टेबल छोटा दिखेगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिलेटिव स्टेबिलिटी, एरोमेटिक एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन बेंजाइल, देन एलाइल, देन C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, देन विनाइलिक, देन अल्काइल. अल्काइल में भी दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी.
Here you can see this is the triphenyl carbanion C6H5 कार्बन के साथ 1, 2 and 3. This C6H5 means benzene ring 1, 2 and 3, and this is the carbanion. C6H5 twice CH carbanion, C6H5 CH2 carbanion. So ये बेंजाइलिक है दोस्तों, 3 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री, 1 डिग्री. उसके बाद एलाइलिक, you can see एलाइल. Then CH triple bond C, then CH2 dual bond CH minus, then 1 degree, 2 degree, 3 degree, or at the end methyl, then 1 degree, 2 degree and 3 degree. As the negative inductive effect is higher, stability is higher. As the positive inductive effect is higher, stability is lower. ये बात हो चुकी है. Here you can see this is the benzyl anion with the NO2. NO2 has a negative inductive effect. This is normally benzyl anion. यहाँ पे भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे रेजोनेंस के साथ स्टेबिलिटी और इंक्रीज करने के लिए नेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है. नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है. सो दिस इज मोर स्टेबल. इसमें अभी दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, एट दी पैरा पोजिशन यू कैन सी मैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप ऐड कर रहा हूँ. सो रेजोनेंस दोनों में, बट फिर भी ये कम स्टेबल है. क्यों? बिकॉज ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट. मिथाइल से भी ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मिथॉक्सी की है दोस्तों, हमने ऑलरेडी बात कर ली थी. सो ये उससे भी कम स्टेबल हुए. सो ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे एग्जैक्ट एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं. एस कैरेक्टर, अभी एस कैरेक्टर में आपको दोस्तों एक बार दिखा दो व्हाट इज एस कैरेक्टर. सपोज किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 इट मींस 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स. इट मींस अगर इसको दोस्तों 100% हम कैलकुलेट करें, 100%, देन 25% इज p, 25p, 25p, टोटल p कैरेक्टर कितना होगा? 75%. और एक ही s ऑर्बिटल है, सो s कैरेक्टर कितना होगा? 25%. ठीक है. अगर दोस्तों किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2, देन क्या होगा? 1s and 2p. इट मींस 33.33% ऑफ p एक में, 1 and 2. सो टोटल p कितनी होगी? 66.66. एंड s कितना होगा? s कैरेक्टर 33.33. If there is sp hybridization, only sp, then this is s and p. So s कैरेक्टर कितना होगा? 50%. p कैरेक्टर कितना होगा? Again 50%. Here you can see stability of the, repeat, stability of the carbon ion. Stability of the carbon ion increase with the increase in s character of the orbital. यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड है, सो sp हाइब्रिडाइजेशन इट मींस 50% s कैरेक्टर, सो ज्यादा स्टेबल है. यहाँ पे भी कार्बन आयन है, बट बिकॉज ऑफ ड्यूअल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन s कैरेक्टर इज 33. हियर sp3 हाइब्रिडाइजेशन s कैरेक्टर इज 25%. सो जितना s कैरेक्टर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, s कैरेक्टर कम, स्टेबिलिटी कम. सिंपल. एंड द ग्रुप लाइक NO2, CN, C dual bond or C2H5, C dual bond, it means keto, I mean to say nitro, cyano, ester, keto, even phenyl, increase the stability of carbon ion. ये सभी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर? इंपॉर्टेंट टेबल ये दोस्तों, इससे आप क्या कर पाओगे? डायरेक्टली कैटायन, एनायन एंड द कार्बन फ्री रेडिकल, इसकी कंपैरिजन कर पाओगे. नेचर, अगर फ्री रेडिकल की बात करें, रिपीट, इफ यू टॉकिंग अबाउट फ्री रेडिकल, न्यूट्रल हो गए, देयर इज नो चार्ज, नो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज. आयन में वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. कॉन्फ़िगरेशन, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर, ऑड इलेक्ट्रॉन. किसमें होगा? आई रिपीट, देयर इज वन सिंगल इलेक्ट्रॉन. आई रिपीट, there is one single electron. कहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है? इन द फ्री रेडिकल. यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ओनली पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये होगा पैरामैग्नेटिक, ये दोनों हो गए डायमैग्नेटिक. ये इस तरह के फॉर्मेशन फिशन से मिलते हैं होमोलैक्टिक फिशन.
इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके निकलना, और ये हेटेरोइलेक्ट्रिक फिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस से ही मिलते हैं। सो वीडियो पॉज करो, ये टेबल को ठीक से नोट करो, बहुत सारे एमसीक्यू दोस्तों इसी तरह यही टेबल से आपके हो जाएंगे। ओके, देयर इज वन मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच इज कार्बिन। दोस्तों बहुत ही डेप्थ में जाके कार्बिन पढ़ना पड़ता है अगर आप आगे की बात कर रहे हो, मीन टू से कॉलेज लेवल या फिर एडवांस लेवल की बात कर रहे हो। फॉर नाउ मैं आपको ओनली कार्बिन क्या है वो दिखाने वाला हूँ, वो टाइप्स ऑफ कार्बिन की बात कर रहा हूँ। सो डेप्थ में नहीं जाएंगे, कार्बिन कैसे बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, किस तरह से रिएक्ट करेगा, एक्सेट्रा। जस्ट टॉकिंग अबाउट दी कार्बिन। ओके, सो कार्बिन दोस्तों कुछ इस तरह से CH एंड दी 2 इलेक्ट्रॉन्स CH2, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, कुछ और भी हो सकता है। सो दिस इज कार्बिन और मिथिलीन, आप इसको कार्बिन या मिथिलीन बोल सकते हो। सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, CH2 डायरेक्टली CH2 और 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन चेन विद द इलेक्ट्रॉन पेयर विद द डिफरेंट स्पिन, दैट इज सिंगलेट। देन ट्रिपलेट भी हो सकता है दोस्तों, ट्रिपलेट में कुछ इस तरह से होगा, जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक रेंज में हो गया, एक रेंज में, और आपके जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे। वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन इन दी सिंगलेट कैसे थे, यू कैन सी एक ही ऑर्बिटल में थे, यहाँ पे अलग में होगा, दैट्स इट। इतना ही दोस्तों याद रखना है फॉर दी कार्बिन। नाउ सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब दिस टॉपिक्स दोस्तों, जितनी भी हमारी इफेक्ट है फ्री रेडिकल्स है उन सबकी कंपैरिजन में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। The given MCQ is heterolysis or heterolytic fission of propane gives। अगर आपके पास ये प्रोपेन है, दिस इज योर प्रोपेन CH3 CH2 CH3, अगर यहाँ पे दोस्तों हेटेरोलाइटिक फिशन हो रहा है तो हेटेरोलाइटिक से इतना तो कंफर्म है, यू विल नॉट गेट फ्री रेडिकल्स, यू विल गेट एनायंस एंड कैटायंस। बट कौन सा एनायन कौन सा कैटायन दोस्तों, अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये बनेगा मिथाइल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात अभी नहीं करते, और ये बनेगा इथाइल। ठीक है, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अभी मिथाइल एंड इथाइल, सो मिथाइल एंड इथाइल इज देयर, सो मिथाइल मिलेगा और इथाइल मिलेगा। उसके साथ दोस्तों जो भी वॉल्यूम वाइज कम होगा, CH3 CH2 CH3 जो कम होगा वो बनेगा एनायन, अदर वन इज कैटायन। ओके, सो दिस इज योर आंसर। देयर इज वन another question is which of the following pair of the ions is more stable। दोस्तों आपको पता होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, द टॉपिक इज रेजोनेटिंग फॉर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर, और उसके लिए मैंने आपको पूरा सीक्वेंस समझाया था, उसका यूज करना है। आंसर इज हियर, आपके पास आंसर है, बस आपको क्या करना है, वो आंसर को वेरीफाई करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए रेजोनेटिंग फॉर्म की स्टेबिलिटी किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑलरेडी एक लेक्चर में हो चुका है। सो आंसर आइडेंटिफाई करके यस और नो, दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग, कंपल्सरी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species is ambidentate nucleophile। ambidentate मीन एक से ज्यादा तरह से कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द कैटायन और यहाँ पे कोई ग्रुप है NU जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, जो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लेस है। सो हियर यू कैन सी, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट हो सकता है, नाइट्रोजन के भी डोनेट हो सकते हैं। सो 2 सोर्स फॉर द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो NO2 is the ambidentate nucleophile। Okay, in our next lecture we are going to discuss electrophile, nucleophile, Lewis base and the Lewis acids and some MCQs। Okay, which of the following carbocation is cations are most stable। दोस्तों हमको मालूम है जितनी पॉजिटिव यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस हियर 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 एंड हियर सभी जगह पे, उसके अलावा जितनी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। सो ये सबसे कम स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ NO2। ये सेकंड लास्ट पे आएगा एट द नंबर 3 बिकॉज इन दोनों में पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों हमने ये पढ़ा था दैट ऑर्थो और पैरा पोजीशन
यहाँ से ज्यादा इफेक्ट होगी इन कंपैरिजन टू मेटा। सो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जो मेटा की कंपैरिजन में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सो दिस इज द मोर स्टेबल कैटायन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, सो फाइनली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड, लुईस बेस, सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सेट्रा। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।